Hello friends, welcome you all on Learn It IITJ with Babita. Friends, we will today learn Chemistry class 11th chapter 4, Chemical Bonding and Molecular Structure. Friends, I want to say that if you like the video, please share it, subscribe the channel for the further uploading of the videos and you will get the notifications. So friends, let's start. Hello friends, let's start our class 11th chapter 4 of chemistry, chemical bonding and molecular structure. Do you know structure and bonding is the heart of chemistry? Chemical bond is very important to explain the properties and structure of compound. The important aspect of each type of force is its relative strength, how rapidly it decreases with increasing distance and whether it directional in nature or not. हमें केमिकल बॉन्डिंग क्यों पढ़नी है? क्या आप जानते हैं कि स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग है जो किसी भी मॉलिक्यूल की, वो हार्ट केमिस्ट्री के लिए, बिकॉज केमिकल बॉन्डिंग के बिना इस नेचर में, इन्वायरमेंट में हम उन मॉलिक्यूल्स के कंपाउंड की स्ट्रेंथ को नहीं जान सकते. सो व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? इट इज द अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन टू एटम्स और आयन्स which hold them constituents together in chemical species is called chemical bond. How many types of bond are there? Do you know? First is ionic bond. Ionic bond occur between ions. There are two ions, example Na plus ion and chlorine negative ion. Between them the bond will be formed will be the ionic bond. Next is covalent bond. Covalent bond is formed when two pairs of electrons are shared. Third is metallic bond. It occurs between the metallic elements and the constituent atoms. Fourth is van der Waals bond. Van der Waals bond occurs in van der Waals radii. Fifth, coordinate bond. It is also known as datyne bond. datyne bond की हमें क्यों जरूरत पड़ी? ऑक्सीजन हुआ, P4OH हुआ, ऐसे बॉन्ड्स को बनाने के लिए जिनमें अदर ऑर्डिनेटिंग्स हैं, हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की ज़रूरत पड़ी. सिक्स्थ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थर्मोडाइनमिक्स के लिए हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी. And for IITJ, it is very important to hydrogen bonding. Next is why bonding take place. Bonding place take क्यों करती है? क्योंकि हमारा नेचर है, केमिस्ट्री का जो नेचर है वो स्टेबिलिटी लव करता है. बॉन्डिंग इज एसोसिएटेड विद स्टेबिलिटी. एवरीथिंग मूव्स टू टेंड स्टेबिलिटी. एन एलिमेंट हैज टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई inert या noble gas electronic configuration NS2, NP6 or NS2, which is considered as very stable in nature. So to achieve the noble gas electronic configuration, the transference of electron, mutual sharing of electron, donation of lone pair of electrons are done. In approach to make the formation of chemical bond in terms of electrons, a number of attempts were made, and similar attempt was done by Lewis and Cossel, Gilbert Lewis and Walhart Cossel. Lewis postulated that atoms achieve their octet when they are linked in chemical bond. तो जो उसने कहा, in the formation of molecule, only the outer shell of molecule takes part, or the valence shell electrons take part in chemical bond combination, and these are known as valence electron या लुईस इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर. उसके लिए लुईस ने इलेक्ट्रॉन के लिए उनका सिंबल्स दिया. जैसे कि एक एलिमेंट है नियॉन, जिसमें n कन्फिग्रेशन है NS2 NP6, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो Ne का बनेगा 2, 4, 6 एंड 8. 2 इसके और 6 इसके, सारे मिल के इसे बनाएंगे. ऐसे ही कोई एटम है ऑक्सीजन, जिसमें है 6 मॉलिक्यूल. तो 1, 2, 3, 4, 5 and 6.
ऐसे हम उन्हें डोनेट करते हैं। एग्जैक्टली ऑक्सीजन में 8 वो होते हैं, कार्बन में होते हैं 6। जी हाँ, कार्बन में 6 होते हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं। लुईस ऑक्टेट रूल। अब लुईस ऑक्टेट रूल क्या कहता है? हर एटम में एक टेंडेंसी है नोबल गैस अटेन करने की, वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू। Every atom has a tendency to attain noble gas configuration or to have 8 valence electron. This is known as law of octet rule, or it has to be 2 valence electron, then it is law of duplet. According to this law, only those compound will stable which follows octet rule. तो अब उसके लिए रूल्स बनाए गए भाई। तो सबसे पहले बने रूल्स फॉर लुईस डॉट स्ट्रक्चर। उनमें सबसे पहला रूल था calculate total number of valence electron available for bonding in a given molecule. सेकेंड था जो अनायन है उनमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तब तक उनका चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ना हो, और कटायन में एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाओ तब तक उनका चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ना हो। For anion, add electron equal to charge in valence electron of that atom, and for cation, remove electrons equal to charge in valence electron of that atom. इसके बाद थर्ड रूल आया। थर्ड रूल था वो था लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कम इन सेंट्रल पोजीशन। अब वो सेंट्रल पोजीशन में आ गए। फोर्थ रूल था shared pair of electrons between 2 atoms and molecules, unshared electron in one atom. जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो बिटवीन एटम्स में शो किए जाते थे और अनशेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किए जाते थे। अब भाई कोई एग्जांपल से समझे। हमारे पास ये है एग्जांपल C2H4। C2H4 में कितने मोह हैं? ये पॉजिटिव होगा नंबर 1 थिंग। तो इसमें तो C2 8 और 4 12 हाइड्रोजन के 4 और 8 कार्बन के। तो ये बनेगा, हमने कार्बन ऐसे और कार्बन के 2, तो इनके 2 और 4 हो गए, इनके बीच में शेयरिंग। ये ऐसे बनेंगे और 2 इसके हाइड्रोजन के साथ और एक हाइड्रोजन का खुद का। ऐसे ही 2 हाइड्रोजन के, एक हाइड्रोजन का खुद का। ऐसे ही 2 हाइड्रोजन के इधर, एक हाइड्रोजन का खुद का, और 2 इस साइड हाइड्रोजन के और एक हाइड्रोजन का खुद का। ऐसे ही N2 है। N2 में 10 मॉलिक्यूल हैं, तो 2 के तो इसने 3 वो बना लिए, तो 6 7 और 8 और 9 10। ऐसे CO2 में हैं 12 ऑक्सीजन के और 4 कार्बन के 16। तो 4 इस तरफ से और 4 इस तरफ से कार्बन के पूरे 8 हो गए, और 2 4 और 6, 2 4 और 6 ऐसे इसके पूरे हो गए भाई, पूरे हो गए 16 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग में। अब आई कोसेल्स थ्योरी। अब कोसेल्स थ्योरी क्या सेट करती है? द बॉन्ड formed by electrostatic force between positive and negative ion term as electrovalent bond or ionic bond। ये कहा था कोसल ने। What the Coasel said? Coasel said that हर बॉन्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव से फॉर्म होगा उसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन हिस्सा लेंगे, और जो पॉजिटिव आयन्स होंगे दे विल लूज द इलेक्ट्रॉन्स, और नेगेटिव होंगे वो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन को। इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड भी कहा जाता है। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहली थी इसकी इनकम्प्लीट ऑक्टेट of central atom. There are some compound in which central atom does not have complete octet but still stable. ऐसा ही एक एग्जांपल है BCl3 और बेरिलियम क्लोराइड 2। ऐसा ही एक एग्जांपल और है
बोरोन एंड फ्लोरीन के साथ। इसमें भी भाई इनकम्प्लीट ऑक्टेट है बीच की। तो सेकंड थी वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल। सम एलिमेंट इन थर्ड पीरियड में उनके जो मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, लाइक कंपाउंड लाइक SF6, PCl5 have 12 and 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सस्पेक्टिवली। इनमें 12 और वो हैं, तो ये इनकी एक्सपेंडेड ऑक्टेट हो गई। अब हमें ये नहीं पता, उसने ये थोड़ी ना कहा था कि यहाँ पे वो करो, उसने कोई सिंपल वो नहीं दिया। आज उसके बाद फर्दर डिस्कवरीज हुई, तब हमें पता चला कि इनकी पोजीशन ये है, वरना हमें क्या पता ही नहीं कहाँ पे मार्क करना है भाई। थर्ड था नोबल गैस लाइक जियोन एंड क्रिप्टॉन शो कंपाउंड। वो मॉलिक्यूल्स नहीं बनाई थी, वो सिर्फ कंपाउंड शो कर रही थी, बट दे आर नोबल गैस, द सेल फॉर्म कंपाउंड। फोर्थ इज लुईस ऑक्टेट रूल। लुईस ऑक्टेट रूल गिव नो आइडिया ऑफ मॉलिक्यूलर शेप। फिफ्थ ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स थे, जैसे कि एनो में था, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे थे इनके, इसके साथ शेयर हो जाने के बाद। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज इज द चार्ज ऑन इंडिविजुअल एटम is termed as formal charge. Formal charge, total number of valence electron minus number of bonded electron minus half number of bonded electron. F equal to V minus L minus half S. Second is coordinate bond. Coordinate bond is sharing of a pair of electron between two species in which the electron pair is of a particular species. Next is ionic bond. An ionic bond is formed by complete transference of one or more electron from valence shell of atom to another atom. Electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions result in formation of an ionic bond. Example, Na2, in which 2 Na plus are there and 1 O2, 2 negatives are there. Next is ionization enthalpy. Ionization enthalpy is energy required to release one electron from isolated gaseous state of an atom, and electron gain enthalpy is when an amount of energy released by an atom to gain an electron from its isolated gaseous atom. Example, NaS plus Na plus 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से जुड़ जाता है, हाफ क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन जिससे निकल जाता है, इसमें निकला और इसमें जुड़ा Na प्लस और क्लोरीन नेगेटिव, तो बनाते हैं दोनों NaCl. Next are factors influencing ionic bond formation. First, ionization energy. Lesser the ionization energy, more it will favor the formation of ionic bond. Second, electron affinity. More the energy released by an atom for gaining electron, more it will favor the formation of ionic bond. Third, lattice energy. Lattice energy, it is defined as the amount of energy absorbed by 1 mole of ionic solid compound to break down it into its constituent ion, or it is the amount of energy released to when 1 mole ions form after combining ionic solid compound. ऊपर वाले में डेल्टा लैटिट्यूड H पॉजिटिव होता है, नीचे वाले में डेल्टा लेट H नेगेटिव होता है. इसमें अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो फोर्स होती है वो होती है -Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4πε0 r², जिसमें F फोर्स होती है, Q1 एंड Q2 चार्ज होती हैं, r² रेडियस का स्क्वायर होता है, डिस्टेंस बिटवीन एटम का स्क्वायर, 4πε0 परमिटिविटी फैक्टर होता है जिसकी वैल्यू होती है 8.18 45685 इंटू 10⁻12 m-1 L3A2. According to the formula, more the charge, less the distance, and more will be the force of attraction, and more will be the lattice energy, and that it will favor the formation of ionic bond. जितनी ज़्यादा लैटिक एनर्जी होगी उतना अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा.
अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ध्यान रहे ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक बॉन्ड की नहीं। तो पहली, द आयोनिक बॉन्ड आर हार्ड, ब्रिटल एंड क्रिस्टलाइन। सेकेंड, they have high melting and boiling point. Third, they have strong electrostatic force of attraction. Fourth, are polar in nature. Fifth, linkage between oppositely charged ions is non-rigid and non-directional. Sixth, they are bad conductor of electricity in solid state because ions are unable to move, but they are good conductor of electricity in fused state and in solution due to mobility of the ions. Seventh, ionic compounds are soluble in water or polar solvents and insoluble in non-polar solvents such as CCl4, C6H6, ether, etc. क्योंकि जो वाटर है वो उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है 80। तो आयोनिक सॉलिड्स व्हेन कैप्ड इन वाटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग आयन आर रिड्यूस टू 1 डिवाइडेड बाई 80 एंड आयन्स आर फ्री टू पास इन सॉल्यूशन। वाटर वो पोलर है क्योंकि डाइपोल आयन अट्रैक्शन की वजह से सेपरेशन ऑफ आयन होता है जो उसे आसानी से पास करने देता है। और थर्ड, आयन हैव टेंडेंसी टू गेट हाइड्रेटेड एंड एनर्जी रिलीज इज नोन एज हाइड्राइजेशन एनर्जी। If hydration energy is greater than electric energy, the ions will fall apart in solution and ionic compounds become soluble. Next is covalent bonding. Covalent bonding, it is the share of pair of electron in any species to form bond, or it is the gain or loss of electron by a force which binds atom of same or different elements by mutual sharing of electron. अब इनकी क्लासिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड दे आर ऑफ 3 टाइप। सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल H2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। डबल कोवेलेंट बॉन्ड O2 ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इन N2 नाइट्रोजन। सेकेंड, ऑन बेसिस ऑफ चार्ज प्रोड्यूस ऑन दैम, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो एक टाइप के एलिमेंट में होते हैं और पोलर वो अलग अलग टाइप के। एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड O2 N2। एग्जाम्पल ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड CCl4 NH3। नेक्स्ट इज व्हाट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड formed between atoms of different elements is termed as polar covalent bond। ये ऐसा बॉन्ड होता है जो डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स में फॉर्म होता है जो अलग अलग एटम्स के होते हैं। नेक्स्ट इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज़ अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 सेम एलिमेंट इन विच नो चार्ज इज प्रोड्यूस्ड इज टर्म्ड एज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में फॉर्म होने वाला बॉन्ड, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सब सेम होगी तो उसमें कोई चार्ज में डिफरेंस नहीं आएगा। वहीं अगर हम ले NH3 NHN का नाइट्रोजन, उसका अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और हाइड्रोजन की अलग, तो उन दोनों के चार्ज में डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या VBT। ये थ्योरी दी थी हिटलर और लंदन ने इन 1927। दे वर 2 साइंटिस्ट। उन्होंने बताया था कि जो फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल होता है उससे पहले हम स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल जान लेते हैं। जो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल होती है वो एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी, अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी। नेक्स्ट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल उन्होंने बताया था अगर अट्रैक्टिव फोर्स हो तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो पहले सेट थे यानी ओल्ड फोर्स, और अब फॉर्म हो रही है वो न्यू फोर्स। हमने इसको अलग से मेंशन भी कर रखा है। जो डैश डैश वाली लाइन है वो तो ओल्ड फोर्स को दिखा रही है, जो बोल्ड लाइन है वो न्यूज़ को दिखा रहे हैं। ये हाइड्रोजन का आइटम A, ये हाइड्रोजन का आइटम B, ये इलेक्ट्रॉन A, ये इलेक्ट्रॉन B। तो जो इसमें हाइड्रोजन A और हाइड्रोजन B है वो न्यूक्लियाई ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड हाइड्रोजन एटम है। इलेक्ट्रॉन A और इलेक्ट्रॉन B इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एटम है। नेक्स्ट इज रिपल्सिव फोर्स। अगर इन दोनों में रिपल्सिव फोर्स हो तो हाइड्रोजन अप डाउन होता है और इलेक्ट्रॉन उनके परपेंडिकुलर होता है XY डायरेक्शन में या XZ डायरेक्शन में। नेक्स्ट इज एटम अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। एटम के जो डिस्टेंस है वो बीच से
अपोज करता है, रिपल्शन करता है, वहीं एक का सेंटर दूसरे की बॉडी को अट्रैक्ट करता है, ऐसे ही इसका सेंटर इसकी बॉडी को अट्रैक्ट करता है। Next is during the formation of molecule there are repulsive forces between nucleus and nucleons and electrons यानी न्यूक्लियस है जैसे कि HAHB और इलेक्ट्रॉन HAHB की जगह EAEB एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन यानी एक की न्यूक्लियाई और दूसरे का इलेक्ट्रॉन यानी एक का सेंटर और एक का बाहर वाला हिस्सा। ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर देन रिपल्सिव फोर्स, दिस इज हाउ अ मॉलिक्यूल फॉर्म्स। जो रिपल्सिव फोर्स होता है उसमें एक एटम का होता है और जिसमें अट्रैक्टिव का होता है उसमें दो मॉलिक्यूल्स का जुड़ जाता है। हम इसे डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं। ये है पोटेंशियल एनर्जी और इस तरफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। जब हम हाइड्रोजन के एटम्स अलग अलग होते हैं तो वो इस पोजीशन पर होते हैं, तब वो हाइड्रोजन एटम कमिंग टुगेदर होते हैं, अप्रोचिंग होते हैं, तब गैस स्टेज में होते हैं। और जब H2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है तो उनकी बॉन्ड लेंथ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस 74 में आ जाती है, यानी रेडियस हम निकालेंगे तो बॉन्ड लेंथ का हाफ कर देंगे। और जो ये लाइन डिस्टेंस फॉर्म हुई है ये है बॉन्ड एंथैल्पी। फ्रॉम दिस ग्राफ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड when the internuclear distance is less the stability is more and energy is also less and at that point of the time molecule is formed। यानी हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होती जाएगी उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। हमें पता पड़ा था एनर्जी बढ़ेगी स्टेबिलिटी घटेगी, एनर्जी घटेगी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मोलिक्यूल इज फॉर्म्ड, क्योंकि स्टेबिलिटी वो होगी, एनर्जी लेस होगी और उसी टाइम पे मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। मॉलिक्यूल फॉर्म होने के लिए क्या चाहिए? लेस एनर्जी उसने चाहिए ताकि वो कम एनर्जी में आसानी से फॉर्म हो सके। नेक्स्ट इज ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट। एस ब्लॉक में सर्कल होता है, PX हॉरिजॉन्टल, PY वर्टिकल एंड PZ। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑर्बिट ओवरलैपिंग। फर्स्ट इज पॉजिटिव ओवरलैपिंग, सेकेंड इज नेगेटिव ओवरलैपिंग एंड थर्ड इज ज़ीरो ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या होती है? इट इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग ऑफ लोब्स ऑफ सेम साइन, इट रिजल्ट्स टू अट्रैक्टिव इन इंट्रैक्शंस, जैसे कि SS बॉन्ड और PZ बॉन्ड, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ऐसे ही PX बॉन्ड और PY बॉन्ड ये पाई बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट इज S और PZ बॉन्ड, ये दोनों सिग्मा और पाई बॉन्ड की कैटेगरी से दूर होते हैं क्योंकि ये टू अदर मॉलिक्यूल्स से आपस में इंटरेक्ट होते हैं। नेक्स्ट इज नेगेटिव ओवरलैपिंग। इट इन्वॉल्व्स द ओवरलैप ऑफ अपोजिट साइन लीडिंग टू रिपल्सिव इंटरेक्शन, यानी एक तरफ का पॉजिटिव होगा तो दूसरी तरफ का नेगेटिव होगा, अगर एक तरफ का नेगेटिव होगा तो दूसरी तरफ का पॉजिटिव होगा। थर्ड, जीरो ओवरलैप। इट इम्प्लाइज द इनएबिलिटी ऑफ एनी काइंड्स ऑफ इंटरेक्शन, इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होती, जैसे कि PX और PZ ये दोनों एक तरफ नेगेटिव और ऊपर दोनों पॉजिटिव। ऐसे PY PZ उन दोनों में भी कोई वो नहीं होती, PZ में कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, इसलिए उससे किसी भी ओवरलैपिंग में शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट वी विल रीड द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अबाउट सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड हाइब्रिडाइजेशन। थैंक